ਅਚੀਵਰ ਪੁਆਇੰਟ ਰਿਕਾਰਡ 9 ਬੈਂਡ ਆਈਲੈਟਸ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ, ਜਿਸ ਦੀ ਮੇਨ ਬ੍ਰਾਂਚ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗਾਈਡ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਚੀਵਰਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਪੰਜਗਰਾਈ, ਬਾਘਾ ਪੁਰਾਣਾ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਅਤੇ ਜੈਤੋ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆਈਲੈਟਸ, ਸਪੋਕਨ ਇੰਗਲਿਸ਼, ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਕੋਰਸ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਸਟਾਫ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਅਚੀਵਰਸ ਪੁਆਇੰਟ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਵਿਖੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੋਸ਼ ਗੁਪਤਾ ਜੋ ਕਿ ਟੋਰਾਂਟੋ ਸਕੂਲ ਆਫ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਪਲੱਸ ਟੀਮ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਤੋਸ਼ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਵਰਿੰਦਰ ਜੀ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਪੇਸ਼ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਪਲੱਸ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ। ਟੋਰਾਂਟੋ ਸਕੂਲ ਆਫ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਆਏ ਨੇ ਅੱਜ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇਣਗੇ, ਐਡਮਿਸ਼ਨਸ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਓਕੇ, ਐਂਡ ਕੀ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਸੋ ਸਭ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਰਾਈਟ, ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਵੈਲਕਮ, ਪਲੀਜ਼। Thank you. Well, good morning. My name is Tosh Gupta and I'm representing Toronto School of Management. So आप सभी लोग IELTS की preparation कर रहे हैं, right? Yes. That means you are preparing for your career to be advanced in a foreign country, right? आप में से कितने लोग हैं जो बाहर जाकर और वापस आना चाहते हैं? Because see, we are sitting in Punjab, right? Frankly speaking, we all know what is the reason of going overseas, right? Because we want to be advanced in our career. हमें अपना career बनाना है, हमें एक better career opportunity चाहिए, and for that we want to advance our studies and we want to be there. We do not want to come back. Now the thing is, सबसे ज़रूरी चीज़ जो हमें चाहिए किसी भी एक country में जाके, what do you think? What is that? एक अच्छी पढ़ाई, राइट, एक अच्छी जॉब, ये दो चीज़ें चाहिए होती हैं किसी भी कंट्री में रहने के लिए, राइट। नाउ अगर हम जनरल कनाडा की बात करें, पढ़ाई हमें बहुत जगहों पे अच्छी मिल जाती है, पर कितने कॉलेजेस हैं जो आपको एक अच्छी जॉब के लिए सपोर्ट करते हैं? क्या कोई कॉलेज है आपकी सोसाइटी में से, आपके रिलेशंस में से, आपके फ्रेंड्स कई सारे गए होंगे कनाडा, क्या वो जिस कॉलेज में गए हैं वो उनको जॉब्स के लिए सपोर्ट करते हैं? कोई कॉलेज नहीं करता। बिकॉज द थिंग इज, आप उनको ट्यूशन फीस देते हो, वो आपको डिप्लोमा देते हैं, दैट्स इट, राइट? दे डू नॉट सपोर्ट यू फॉर द जॉब्स। सो द थिंग इज, वी हियर एट टोरंटो स्कूल ऑफ मैनेजमेंट, we are there to support our students for the jobs. Friends गए होंगे, आपके relatives गए होंगे, आपके society, आपके neighbors गए होंगे। 95% of students जो कनाडा जाते हैं उनको अपने फील्ड की जॉब्स नहीं मिलती, राइट? एंड एट द एंड बच्चे क्या करते हैं, फिर लेबर जॉब्स करना शुरू करते हैं, राइट? दे डू पिज़्ज़ा हट में, मैकडोनल्ड्स में, फास्ट फूड कॉर्नर्स, होटल्स, टैक्सी चलाते हैं, पेट्रोल पंप्स में काम करते हैं, बिकॉज दे डू नॉट गेट जॉब्स इन देयर ओन स्टडी फील्ड। डू यू नो व्हाट इज द रीजन ऑफ दिस? क्यों नहीं मिलती अपने फील्ड की जॉब? Anyone, brother, raise your hand if you want to speak.
फर्स्ट रीजन इज आपके पास कोई वर्क एक्सपीरियंस नहीं होता, राइट, एंड दिस इज वाई आपको आपके फील्ड की जॉब्स नहीं मिलती. सेकेंड रीजन इज कॉलेज आपको सपोर्ट नहीं करते फॉर दी जॉब्स, सो आपको वैसी जॉब्स नहीं मिलती. बट वी हियर एट टोरंटो स्कूल ऑफ मैनेजमेंट वी आर गिविंग गारंटीड co-op placement to our student in the field related to your programs of studies. co-op को अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बोलें तो वी कैन कॉल इट इंटर्नशिप, राइट. तो हम अपने बच्चों को गारंटीड co-op placement देते हैं इन द फील्ड रिलेटेड टू देयर स्टडीज. एंड इसके लिए हमारे पास 108 कंपनीज हैं, 108 ब्रांड्स हैं who come to our college to recruit our students directly from the campus. हमारे यहाँ करियर फेयर्स में कंपनीज आती हैं एंड बच्चों के इंटरव्यूज लेती हैं एंड दे रिक्रूट आवर स्टूडेंट्स. नाउ फॉर दिस रिक्रूटमेंट वी प्रिपेयर आवर स्टूडेंट्स फॉर 2 months. 2 महीने हम आपकी एडिशनल क्लासेस चलाते हैं जिसमें आपका रेज्यूमे बिल्डिंग, आपकी इंटरव्यू प्रिपरेशन एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट की क्लासेस चलती हैं. So the thing is, we prepare our students to be industry ready because we do not wish our students to work as a labor in Canada. क्योंकि अगर हमारे बच्चे भी कनाडा में लेबर की तरह काम करें, how does it make difference for us and in the other institutions? So we try to make this differentiation. Now एक सबसे important चीज आपने देखा होगा कनाडा में एक और बहुत मेजर रीज़न है जिसकी वजह से स्पेशली इंडियन स्टूडेंट्स को उनके फील्ड की जॉब्स नहीं मिलती, एंड दैट इज़ द कम्युनिकेशन स्किल्स, राइट. आपके फ्रेंड्स गए होंगे जो वहाँ या रिलेटिव्स होंगे, आपने देखा होगा 2 साल 3 साल 4 साल से कनाडा में हैं बट स्टिल दे आर नॉट एबल टू स्पीक इंग्लिश. देखा है ऐसा, राइट, बिकॉज कम्युनिकेशन स्किल्स पे कभी काम ही नहीं करते. नाउ यू जस्ट इमेजिन कि आप कनाडा जा रहे हो और आपके पास कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है. डू यू थिंक कि कोई भी कंपनी, कोई भी मल्टीनेशनल कंपनी आपको जॉब देगी? नहीं देगी, बिकॉज आप अगर किसी भी कंपनी में जा रहे हो, एक अच्छे ब्रांड में जा रहे हो काम करने, ऑब्वियसली यू विल हैव अ लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज इन द सेम कंपनी, राइट. और अगर आपके पास कम्युनिकेशन स्किल्स ही नहीं है, obviously the company is not going to give you any job. We at Toronto School of Management, we are working there to support you to improve on your interpersonal skills, to support you to improve on your communication skills. Now how do we do that? आपने देखा होगा ज़्यादातर जो कनाडा के कॉलेजेस हैं उनमें 50 से लेकर 90% तक इंडियन बच्चा होता है. पता है आपको ये बात? मैं नाम नहीं लूंगा बट कनाडा में कुछ कॉलेजेस को तो खालसा कॉलेज भी बोलते हैं बिकॉज 95% बच्चा वहाँ पे पंजाबी है. सो द थिंग इज, अगर आई डू नॉट से कि इंडियन बच्चों के साथ पढ़ना इज बैड, बट द थिंग इज इंडियन बच्चों के साथ पढ़ने में एक जो नुकसान आपको रहता है दैट इज कि आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप नहीं कर पाते. नाउ वी आर सिटिंग हियर इन पंजाब. आप सभी लोग आइल्स की प्रिपरेशन करते हैं. यहाँ से बाहर जाके आप में से कितने लोग आइल्स यूज़ करते हैं, इंग्लिश यूज़ करते हैं, आइल्स की अपनी ट्रेनिंग को याद करते हैं या इंग्लिश यूज़ करते हैं? कितने लोग करते हैं? एनीवन? लेट्स से अगर आप एक 8-10 अपने फ्रेंड्स के ग्रुप में हो एंड यू स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश, क्या कमेंट्स मिलते हैं आपको? We all know it, right? Now the same thing, imagine अगर आप कनाडा के अंदर हैं and if you have your friends, आपके 4-5 फ्रेंड्स हैं, 10 फ्रेंड्स हैं फ्रॉम योर सेम कंट्री, और वहाँ पे अगर आप इंग्लिश बोलना शुरू करो, क्या कमेंट्स मिलेंगे? कनाडा आके बन गया अंग्रेज, है ना? सो थिंग इज, इस वजह से फिर आप भी इंग्लिश बोलना नहीं ट्राई करोगे. सो व्हाट हैपेंस इज, in starting it looks good कि we are very much comfortable with our citizens, with our countrymen, हमारे friends हैं, but the thing is in long run it actually hampers your communication skills, and जब आप जॉब के लिए जाते हो, इंटरव्यू के लिए जाते हो, when you are not able to speak English, आपको जॉब्स नहीं मिलती. सब आता है हमें, राइट? सो द थिंग इज, एक दिन पहले पढ़ के भी we can score good marks. बट द थिंग इज, ये एक ऐसी चीज़ है जहाँ हम लैक करते हैं व्हेन वी आर गोइंग इन अ मल्टीनेशनल कंपनी, क्योंकि जब भी आप कहीं जॉब के लिए जाते हो या प्रेजेंटेशन या प्रोजेक्ट्स पे काम करते हो,
यू कैन नॉट वर्क टिल द लास्ट टाइम, क्योंकि आप फिर सीख नहीं पाते। तो ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, सामने प्रेजेंटेशन शुरू हो चुकी है, नाउ दे आर फिनिशिंग देयर प्रेजेंटेशन। उसमें लॉस क्या होता है, यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग और यू आर नॉट लर्निंग, व्हाट यू आर डूइंग इज कहीं से कुछ मिला वहाँ से लेके कॉपी पेस्ट करके और दे दिया, बस काम खत्म हो जाए, बाकी की देख लेंगे। बट द थिंग इज इन दैट वे वी आर नॉट एबल टू लर्न। नाउ हियर एट टोरंटो स्कूल ऑफ मैनेजमेंट वी हैव स्टूडेंट्स कमिंग फ्रॉम 88 डिफरेंट कंट्रीज। 88 अलग अलग कंट्रीज के स्टूडेंट्स हैं, जिनमें इंडियंस आर 15%, 15%। नाउ हमारी जो क्लास का साइज है दैट इज वेरी स्मॉल, सो वी हैव अराउंड 20 स्टूडेंट्स पर क्लास। तो अगर 20 बच्चों की क्लास में इफ वी टॉक अबाउट इंडियंस, वी हैव 3 इंडियन स्टूडेंट्स, राइट। तो लेट्स से अगर हमारा कोई प्रोग्राम है जिसमें 100-150 बच्चे भी हैं, देन वी मेक 7 डिफरेंट क्लासेस फॉर देम, सो दैट हर क्लास में हमारे पास 20 बच्चा ही हो और उसमें हमारे पास एक डाइवर्सिटी हो। नाउ इन वन क्लास if we have 3 Indian students, and जब हम उनको डिवाइड करते हैं for their projects, for their assignments, and for their presentations, we always try कि किसी भी एक ग्रुप में एक कंट्री का एक ही बच्चा हो, so that they would have a diversity। आपका 4 बच्चों का भी ग्रुप होगा, at least you'll be you'll have to speak English, so that is how you improve। Now कई बार बच्चे उसमें डरते भी हैं कि इंग्लिश में अगर गलत बोलूं तो लोग हंसेंगे, because this is English is our second language, right? So it is not our first language. So the thing is, this goes with 98% of the students in our college। किसी की इंग्लिश लैंग्वेज फर्स्ट नहीं होती, राइट। कनाडा, यूएसए ऐसी कुछ कंट्रीज हैं जहाँ पे इंग्लिश बोली जाती है, अदरवाइज बाकियों की तो अलग अलग लैंग्वेजेस हैं। सो द थिंग इज, शुरू में डर लगता है बच्चों को, राइट, बट कब तक? 1 हफ्ते, 1 महीने, 5 महीने, 6 महीने डर लगेगा, फिर तो आपको आदत हो जाएगी कि इंग्लिश बोलनी है। सो वंस यू कम आउट ऑफ योर फियर, यू स्टार्ट इम्प्रूविंग ऑन योर कम्युनिकेशन स्किल्स, एंड दिस इज हाउ आवर स्टूडेंट्स आर एबल टू सिक्योर बेटर जॉब्स देन अदर स्टूडेंट्स हु आर गोइंग टू कनाडा इन डिफरेंट कॉलेजेस, राइट। नाउ तो मैंने आपको ये चीज़ें बताई कि वाई टोरंटो स्कूल ऑफ मैनेजमेंट इज बेटर। नाउ अपार्ट फ्रॉम दिस, हमारे जो प्रोग्राम्स हैं दे आर पावर्ड बाय सम ऑफ द इंडस्ट्री लीडर्स like Amazon Web Services, CompTIA, Digital Marketing Institute, Trailhead, and ACCA. So these are the industry leaders who are powering our program. That means हम बच्चों को जो पढ़ा रहे हैं that is very much related to the industry जो उनको ज़रूरत पड़ने वाली है at the time of their work। आपने देखा होगा बहुत सारे कॉलेजेस फर्स्ट सेमेस्टर बच्चों का सेम होता है, बच्चा चाहे कंप्यूटर में जा रहा है, चाहे आईटी के फील्ड में जा रहा है, चाहे बिजनेस में जा रहा है, फर्स्ट सेमेस्टर बच्चों का सेम होता है जो बच्चे पढ़ते हैं कई सारे कॉलेजेस में। विद अस इट इज़ नॉट द केस। हम बच्चों को उतनी ही चीज़ें पढ़ाते हैं जितना उनके फील्ड के लिए ज़रूरी है, सो दैट दे कैन स्टार्ट देयर ट्रेनिंग एज फास्ट एज दे कैन एंड दे कैन बी सक्सेसफुल इन देयर करियर, राइट। हमारा जो गारंटीड कोऑप है दैट इज़ विद ऑल ऑफ आवर प्रोग्राम्स। ना हमारा एक प्रोग्राम है कॉल्ड डिप्लोमा इन बिजनेस मैनेजमेंट कोऑप, जिसमें जो 2 साल का प्रोग्राम है जिसमें 6 महीने की कोऑप इंक्लूडेड है। नाउ कनाडा की 1 साल की फीस कितनी है? डू वी हैव द आइडिया? किसी भी कॉलेज की, शेरिडन कॉलेज दी या किसी भी कॉलेज ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਨੀਅਰ ਅਬਾਊਟ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਫਰੈਂਡ ਸਰਕਲ ਚ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, near about 20,000. So it ranges between $15,000 to $20,000 per year, right? टोरंटो स्कूल ऑफ मैनेजमेंट में आपकी 2 साल की जो फीस है दैट इज जनरली $20,000, 2 साल की, राइट। सो पर ईयर इट इज $10,000। बट राइट नाउ अगर आप अप्लाई करते हो, राइट, बिकॉज आई एम हियर टुडे, सो अगर आप अप्लाई करते हो यू विल गेट द स्कॉलरशिप ऑफ $12,000 अप्रॉक्सीमेटली। सो इंक्लूडिंग द बुक्स एंड मटेरियल फी, आपकी 2 साल की फीस वुड बी $9,000 टोटल। दैट मीन्स $4,500 आपकी 1 साल की फीस बनेगी, विच इज अप्रॉक्सीमेटली 2.5 लाख रुपीज। बट दैट्स ओनली अगर आप अप्लाई करते हो अभी तो। सो दिस इज अ प्रोग्राम जिसमें आपको 2 साल का डिप्लोमा है एंड 6 मंथ्स की आपकी कोऑप है ना। उसके बाद इफ़ यू वांट टू फर्दर ऑन योर एजुकेशन, आप पाथवे लेकर जा सकते हो यूनिवर्सिटी कनाडा वेस्ट या फिर यॉर्कविल यूनिवर्सिटी, जहां आपको अपनी डिग्री कंप्लीट करने का ऑप्शन मिलेगा। नाउ जनरली कई बार बच्चे ये भी पूछते हैं कि अगर मुझे बाद में जाके डिग्री करनी है
तो why not going directly for a degree, right? Now I'll tell you the difference between coming to Toronto School of Management and then going for a pathway and going for a direct degree. Direct degree में जब आप जाते हो आप 4 साल स्टडी करते हो, बैचलर्स डिग्री मिलती है, and then you get 3 years post graduate work permit, and आपका जो एक्सपेंडिचर होता है that is around $70,000 to $80,000. इसके अलावा कुछ और बेनिफिट मिलता है आपको? नहीं. Now when you are coming to Toronto School of Management and then going for a pathway, then you get a diploma, a degree, 3 years post graduate work permit, right? 6 महीने की co-op which is mandatory, right? आपको 6 महीने का वर्क एक्सपीरियंस मिल रहा है. Then आपका जो टोटल एक्सपेंडिचर है that is around $45,000 to $50,000. यानी आप जो एक नॉर्मल डिग्री में खर्च करते हो उसका अराउंड 50% आप खर्च कर रहे हो, एंड यू आर गेटिंग मोर बेनिफिट्स देन द स्टूडेंट हु इज गोइंग फॉर अ डायरेक्ट डिग्री. सो इसलिए मैं अपने सारे स्टूडेंट्स को रिकमेंड करता हूं कि आप डिग्री करो, क्योंकि डिग्री का बेनिफिट आपको ज़्यादा है rather than going only for a diploma. आप 4 साल पढ़ाई ज़रूर करोगे, but then you will have more benefits, you will have much stronger foundation than those students जो डायरेक्ट डिग्री के लिए जा रहे हैं. 2 साल की बैचलर्स होती है एंड 2 साल की मास्टर्स होती है, तो जनरली टेक 6 years, पर अगर आप इंटीग्रेटेड प्रोग्राम लेकर जाते हो तो यू कैन कंप्लीट योर MBA in 5 years. However, in this program अगर आप ACCA करने जाते हो, if you are a 12th grade student, आप अगले 3 साल में अपना MBA कंप्लीट कर सकते हैं, and you can get 3 years post graduate work permit after that, right? So this is a program which is very good for you. Now अगर आप CA बनना चाहते हो and then if you want to go for MBA, अगले 4 साल में you can get your bachelor's degree from UK, your ACCA qualification and your MBA degree from Canada. आपको UK जाना नहीं है, you have to stay there in Canada, but आपको bachelor's degree UK की मिलेगी, ACCA qualification मिलेगी, and then you will be getting your MBA degree in Canada and you will have 3 years postgraduate work permit after that. 12th के बाद अपनी स्टडी एडवांस करना चाहते हो या फिर MBA करना चाहते हो, this is a perfect program for you. Otherwise, अगर आप किसी स्पेसिफिक डिप्लोमा में जाना चाहते हो, we have that option. You can see the options here that we have. So we have all these options जिनको आप चूज कर सकते हो, but I would again say Diploma in Business Management is our program which is being chosen by a lot of students all over the world. इसका एक सबसे बड़ा रीज़न है कि हमारी जो स्कॉलरशिप है that is being available for our students as per your profile. तो स्कॉलरशिप आपको देने से पहले I'll have to see your profile and then I'll be able to give you the scholarship. So these were few informations that I wanted to give you. Now इसके बाद अगर कोई आपके questions हैं general, you can ask me. Or otherwise I'm still here for around an hour. अगर आपके कोई individual questions हो तो you can meet me and talk to me. Discuss your profile. आपको application करनी है, you can come and meet me outside. Right? Thank you. Have a good. ओवरऑल कितने मार्क्स हैं आपके? सर ओवरऑल परसेंटेज 70 और आपकी 76. बहुत बढ़िया परसेंटेज है, टेंशन ही कोई नहीं. रोची रखी है मैंने रोची रखी है सर ऑफर लेटर रास्ते से कब अप्लाई कर सकते हैं? ऑपरेटर भी आप अप्लाई कर सकते हो. आपने आइट्स किया हुआ है? ये भी कर. अच्छा, कब का टेस्ट है आपका? सर मेरा सर ट्वेल्थ का सर एलआरटी होगी सर 19 की स्पीकिंग है. 19 की सर स्पीकिंग है, 19 की स्पीकिंग है. और आपका टेस्ट आपने बुक किया हुआ है? नहीं सर शुरू हुई था. अच्छा, देखो आई वुड सजेस्ट कि अगर आपने आइट्स अभी किया नहीं, कि आप 19 को भी करोगे तो उसका रिजल्ट आने में 13 डेज और लगेंगे. तो व्हाट आई वुड सजेस्ट कि आप डुओलिंगो टेस्ट दो, जैसा मैंने आपके पहले वाले स्टूडेंट्स को भी बोला, क्योंकि डुओलिंगो आपका $50 का खर्चा ज़रूर है, पर इट इज़ गोइंग टू गिव यू ह्यूज स्कॉलरशिप. ਬੱਚੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੋਰਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਹੈਗੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ. ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰੋ ਵੀ ਆਪਦਾ 20 ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਦੇ ਦੇਣ ਡੁਓਲਿੰਗੋ. हाँ 20 तक दे रहे हैं. ਠੀਕ ਹੈ. 1 ਆਰ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ. ਉਹ ਗਾਈਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ, ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਹੈ.
ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਡੂਲਿੰਗੋ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸਬਮਿਟ ਕਰਵਾ ਦਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਕੋਲਰਸ਼ਿਪ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਐਜ਼ ਇਟ ਉਵੇਂ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਕੰਫਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਇਲਸ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਦੋਂ ਆਏਗਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅੰਬੈਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਬਮਿਟ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਡੂਲਿੰਗੋ ਅੰਬੈਸੀ ਅਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦੇਗੀ। ਕਾਲਜ 'ਚ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ ਸਰ ਇਹ 10 ਇਅਰ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਆਫਟਰ ਡੈਟ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸੀਗੀ 4 Three ਇਅਰ years ਦਾ? ਹਾਂਜੀ 4 ਦਾ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਪਲੀਟ ਫਿਰ। ਕੋਰਸ ਦਾ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਦੇਖ ਬੇਟੇ, ਤੇਰਾ ਦੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਆਪਾਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸ਼ਨ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਤੇਰਾ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਕੈਰੀਅਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਫੈਸ਼ਨ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਸਰ, ਜੇ ਆਪਦਾ ਫੀਲਡ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਫੈਸ਼ਨ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਸਨ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਹੈ ਨਾ, ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਮੈਥ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਪਲੱਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ ਇਹ ਕਰ ਲੈਣ ਤਾਂ ਨੈਚੁਰਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਲਪ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਫੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ ਸਿਰਫ, ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਤਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਰਹੇਗਾ, ਹੈ ਨਾ, ਗਲਤ ਗਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਤੂੰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਹਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਫੀਲਡ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਫੀਲਡ ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ ਬੈਂਕ 'ਚ ਜੋਬ ਕਰ ਰਹੇ, ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਥਿੰਗ ਹੋ ਗਈ, ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜੇ ਫੈਸ਼ਨ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪਰਸਨਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਲਈ ਹੈਗੇ ਆ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਆਰਡਰ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਰਡਰ ਆਉਂਦਾ ਹਾਂਜੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨਾਲ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਬਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਹੈ ਨਾ। आर्ट्स आपने 12th की हुई है, आपने 12th आर्ट्स की हुई है। आर्ट्स के बाद मेरे पास एक प्रोग्राम है एडवांस डिप्लोमा इन हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म मैनेजमेंट, 2 साल का प्रोग्राम है जिसमें 6 महीने की कोऑप इंक्लूडेड है। आप दोनों ने आइल्स की हुई है, जनवरी में दोगे आप। देखो अगर आप आइल्स जनवरी में देने वाले हो, व्हाट यू कैन डू इज़ यू कैन गो फॉर अ ड्यूलिंगो टेस्ट, एंड उसके बाद आप हमारे एडवांस डिप्लोमा इन हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म मैनेजमेंट में इनरोल कर सकते हो विद दी स्कॉलरशिप। क्योंकि स्कॉलरशिप का टाइम लिमिटेड है और उसकी एक ही रिक्वायरमेंट है कि इंग्लिश टेस्ट होना चाहिए आपके पास। तो अगर इंग्लिश टेस्ट नहीं है तो आपको स्कॉलरशिप नहीं मिल पाएगी, है ना। तो क्योंकि अब मेरी जैसे बरिंदर जी से पहले भी बात हुई थी तो उन्होंने बताया था कि बहुत सारे बच्चे हैं जो दिसंबर लास्ट वीक में या जनवरी में एग्ज़ाम देने वाले हैं, पर स्कॉलरशिप तो हमारे पास लिमिटेड है। तो स्कॉलरशिप का एक क्राइटेरिया है कि आपके पास इंग्लिश टेस्ट का रिजल्ट होना चाहिए। तो यू ट्राई कि अगर आप डुओलिंगो टेस्ट देखो, बहुत ईजी सा टेस्ट है। आप लोग कब से प्रिपरेशन कर रहे हो आइल्स की? सर अक्टूबर से। अभी जो प्रैक्टिस टेस्ट होते हैं उसमें कितने मार्क्स आ रहे हैं आपके? सर 5.5 बड़े आराम से निकाल लोगे डुओलिंगो, कोई दिक्कत नहीं है। 5.5 के साथ बड़े आराम क्योंकि डुओलिंगो का जो लेवल है दैट इज़ वेरी लो इन कंपैरिजन विद आइल्स। तो अगर आप आइल्स के प्रैक्टिस टेस्ट में 5.5 भी ला रहे हो तो डुओलिंगो आराम से निकाल सकते हो। 1 घंटे का टेस्ट है, $50 का उसका खर्चा है, एंड उसके बाद आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी। तो आपकी जहाँ हमारी 2 साल की फ़ीस $20,000 है, वहाँ आपको 2 साल की फ़ीस सिर्फ $8,500 पड़ेगी। तो देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस इन द इन्वेस्टमेंट। ਮਾਈਸੈਲਫ ਲਵਲੀਨ ਗਰਲ ਫਰੋਮ ਅਚੀਵਰਸ ਪੁਆਇੰਟ ਕੋਟਕਪੂਰਾ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਰਾਂਟੋ ਕਾਲਜ ਆਫ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਤੋਂ ਸਰ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ। ਸੋ ਆਓ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਕਾਲਜ ਦੇ ਰਿਲੇਟਿਡ। ਸਰ ਅੱਜ ਦਾ ਸੈਮੀਨਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਕਸੈਸਫੁਲੀ ਚੱਲਿਆ ਔਰ ਕਾਫੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਆ ਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਿੱਤੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ?
देखिए आज का सेमिनार काफ़ी अच्छा था। मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स से मिला हूँ एंड उनको मैंने गाइड किया है, और बहुत सारे स्टूडेंट्स से मैं इंडिविजुअल भी मिला हूँ और उनकी प्रोफाइल देखी है एंड बहुत अच्छी अच्छी प्रोफाइल्स के स्टूडेंट्स मुझे मिले हैं। एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो आर्ट्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आगे आर्ट्स का एग्जामिनेशन देने वाले हैं। तो मैंने उनको गाइड किया है कि कैसे वो अपने करियर के लिए टोरंटो स्कूल ऑफ मैनेजमेंट को ज्वाइन कर सकते हैं एंड उनको क्या करियर अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, ये सारा कुछ मैंने उनको बताया है आज। सर जैसे आपने अचीवर पॉइंट को ही चूज़ किया, क्या कारण है? क्या इनका जो पहले का रिजल्ट्स हैं, जैसे इनका माइंड सेटअप है, किस तरीके से आपने अचीवर पॉइंट को चूज़ किया है? देखिए अचीवर्स पॉइंट, अगर मैं कोटकपुरा की बात करूं तो कोटकपुरा में अचीवर्स पॉइंट काफ़ी टाइम से हैं। तो ऑब्वियसली इनका एक जो ट्रस्ट फैक्टर है, जो ट्रस्ट बना हुआ है मार्केट में, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट है। और मार्केट में जो क्लाइंटेल है, जो यहाँ के स्टूडेंट्स हैं, जो उनके पेरेंट्स हैं, वो अचीवर्स पॉइंट पे मिस्टर बरिंदर पे एक ट्रस्ट करते हैं, राइट। सो ये एक वजह है कि मैंने कोटकपुरा में स्पेशली सिर्फ एक ही जो कंसल्टेंट हैं अचीवर्स पॉइंट, सिर्फ उनको चूज़ किया है टोरंटो स्कूल ऑफ मैनेजमेंट के लिए। क्योंकि ये एक तो जब हम चूज़ करते हैं कंसल्टेंट्स को, तो हम कुछ चीज़ें देखते हैं, जैसे एक तो ट्रस्ट होना चाहिए, प्लस प्रैक्टिस जेन्युइन होनी चाहिए, ताकि बच्चों को कोई भी गलत गाइडेंस ना मिले। तो ये इन कुछ चीज़ों को देखते हुए हमने फिर कोटकपुरा में बरिंदर जी से मैंने कांटेक्ट किया एंड ही इज़ नाउ रिप्रेजेंटिंग टोरंटो स्कूल ऑफ मैनेजमेंट हियर एंड इन्होंने हमें स्टूडेंट्स भी दिए हुए हैं एंड ही इज़ होपिंग कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स को ये सक्सेसफुल करियर के लिए टोरंटो स्कूल ऑफ मैनेजमेंट में भेज पाएंगे। कि जो एक ट्रस्ट फैक्टर है मार्केट में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बरिंदर जी जिस तरीके से बच्चों को गाइड करते हैं एंड जैसे उनके पेरेंट्स को गाइड करते हैं, तो गलत गाइड नहीं करते हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसी वजह से इनके पास बच्चों की इतनी स्ट्रेंथ है इनकी आर्ट्स की प्रिपरेशन के लिए, और यही एक वजह है कि बच्चे इनकी गाइडेंस देखते हैं कि अगर बरिंदर जी कुछ भी बच्चों को बता रहे हैं तो वो मानते हैं इनकी बात एंड फिर आगे फॉलो करते हैं और एप्लीकेशंस करते हैं। सर जो शाइनिंग स्टूडेंट्स हैं उनके लिए आपकी जो कॉलेज है, क्या वो भी जैसे बरिंदर जी शाइनिंग स्टूडेंट्स को हमेशा प्रेफर करते हैं, उनके लिए कोई ना कोई नई स्कीम लाते हैं, तो क्या आपका स्कूल भी कोई उनके लिए ऐसा कोई पॉइंट ऑफ व्यू देगा उनको? देखिए अभी जैसे आज मैंने बच्चों को बताया कि हम अभी बच्चों को स्कॉलरशिप दे रहे हैं, तो हम अपने बच्चों को लगभग $11,500 की स्कॉलरशिप अभी दे रहे हैं अगर कोई बच्चा अभी अप्लाई करता है, और अगर उसकी प्रोफाइल एलिजिबल है तो ऑब्वियसली हम बच्चों को दे रहे हैं स्कॉलरशिप, और दिस इज़ ओनली फॉर अचीवर्स पॉइंट। और जिस तरीके से अचीवर पॉइंट केवल आज कोटकपुरा में नहीं, अगर हम बात करें जैतो की, बागापुराना की, फरीदकोट की, पंचग्रह की, और धीरे धीरे ये जो है एक शानदार पेड़ का रूप धारण कर रहा है, छोटा सा बूटा जो बरिंदर जी ने लगाया था। तो क्या ये जो आपका कॉलेज है वो हमेशा हर जगह पर ही वैसे इनके साथ ही खड़ा रहेगा? देखिए हम खड़े हैं अचीवर्स पॉइंट के साथ। आई एम सपोर्टिंग अचीवर्स पॉइंट फॉर ऑल देयर एफर्ट्स। तो मैं बरिंदर जी को सपोर्ट कर रहा हूँ, वो चाहे कोटकपुरा में है या बागापुराना में है, कहीं पर भी हैं। मुझे तो बरिंदर जी को सपोर्ट करना है, तो वो कहीं पर भी हूँ, आई विल बी देयर विद यू। सर ये कम्प्लीमेशन है, वो भी सपोर्ट कर रहे हैं, इतने स्टूडेंट्स आपको दे रहे हैं, ये मतलब जो ये स्टूडेंट्स दे रहे हैं, इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर एनी इंस्टीट्यूशन टू गिव यू सो मच स्टूडेंट्स। नहीं वो तो है ही, ये हमें सपोर्ट कर रहे हैं, इसलिए मुझे भी एक एनकरेजमेंट मिलती है कि मैं भी इनको सपोर्ट करूं ज़्यादा से ज़्यादा और जितना मैं कर सकूं। तो ऑब्वियसली ये एक टू वे प्रोसेस है। हाँ एग्जैक्टली, कि जितना ये हमें सपोर्ट कर पाएंगे, जितना हम इन्हें सपोर्ट कर पाएंगे, क्योंकि हम दोनों को ये देखना है कि बच्चों को करियर के लिए एक अच्छी गाइडेंस मिले, उनका जो करियर है कनाडा में जाके एक सक्सेसफुल करियर बने। तो इसके लिए हम दोनों को ही एक दूसरे का सपोर्ट करना पड़ेगा। ਬਰਿੰਦਰ ਜੀ ਜੋ ਟਰਸਟ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹੀ ਟਰਸਟ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਸ ਕਾਲਜ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਆ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਗੇ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਸੈਮੀਨਾਰ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਮਤਲਬ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਇਸ ਰੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਰਿੰਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਹੀ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਸਰ ਦਾ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਡੀ ਵਧੀਆ ਆਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਕਿਸੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸੈਮੀਨਾਰ ਲਗਾਉਣ ਆ ਰਹੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸੈਮੀਨਾਰ ਲਗਾਇਆ, ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਡੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਸਿਨੈਰੀਓ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛੀ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਅੱਛੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ,
ਜਿੰਦੇ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੈਰੀਅਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਇਹ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਾਲਜ ਹੈ ਟੋਰਾਂਟੋ ਸਕੂਲ ਆਫ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਟੋਰਾਂਟੋ ਦਾ ਕਾਫੀ ਰੈਪੂਟਡ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਕੂਲ ਹੈਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਟਾਈ ਅਪ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਫੀ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਵੀਜ਼ਾ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਕੋਲੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ 8 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਟਰਸਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਨੂੰ ਟੋਰਾਂਟੋ ਸਕੂਲ ਆਫ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਆਪਦੇ ਨਾਲ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਕਰਨ ਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਰ ਦਾ ਥੈਂਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚਾਂਸ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੈਰੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟਰੀਮ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਕੋਰਸ ਗਾਈਡ ਕੀਤੇ। ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਰਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਕੋਪ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕੰਪਲਸਰੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੋਬ ਲੈਣੀ ਕਾਫੀ ਟਫ ਟਾਸਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਇੱਕ ਈਜ਼ੀ ਸਟੈਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਅੱਛੀ ਜੋਬ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਦਾ ਅੱਛਾ ਕੈਰੀਅਰ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੇ ਲਈ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਪਲੱਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਏ ਉਸ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਔਰ ਵਰਿੰਦਰ ਜੀ ਜਿਹੜਾ 8 ਸਾਲ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜੋ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੋਕ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਐਪੀਡੈਮਿਕ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਓਵਰਲੈਪਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ। Thank you.